It is a privilege to introduce Dr. Ruby Ojha, Professor and Head of the Department of Economics at SNDT Women's University, Mumbai. Dr. Ojha is currently serving as the Pro Vice Chancellor of SNDT Women's University, Mumbai, and brings with her a rich academic journey spanning over 25 years of teaching and more than a decade of research experience. Her work in the field of economics has been both extensive and meaningful. She has authored 2 books, over 40 research papers, and presented her work at more than 50 national and international conferences. She has also guided 12 PhD scholars, contributing significantly to academic and research development. Beyond her academic contributions, she has held important leadership roles, including Director of BCUD, Finance and Accounts Officer, Officer on Special Duty, reflecting her strong administrative capabilities. Her work has been widely recognized. She has been honored among India's top 20 leaders in education, received the Best Academician Award in 2025, and the Vagdhara Navratna Samman for her contribution to education. Dr. Ojha's work, especially in areas like development and women's empowerment, continues to inspire and create meaningful impact. We are truly honored to have you here with us, ma'am. I now request Sameerji to kindly address. I welcome our chief guest, Dr. Ruby Ojha, to our ashram. We are very grateful that she has taken out time and be here for some time and give her insight for our skill development program. Thank you, Dr. Ojha. And I welcome all the volunteers, all the rejuvenators, and all the honorary guests who are present at here. और जो नहीं आए हैं उनको भी बहुत बहुत सम्मान आभार, क्योंकि आज जो जागृति का जो कार्यक्रम है वो उनकी वजह से संभव हो रहा है. Now I thanks all the support extending their hands, like Health City Vistar, headed by Dr. Sandeep Kapoor and Dr. Darshana Kapoor. Thanks to Akhil Bharatiya Marwari Mahila Sammelan, headed by Srimati Sushila Agarwal. Shri Radha Sakhi Seva Parivar Samiti, headed by Srimati Sushma Agarwal, and many more. They have contributed in many ways, like providing computer, like providing silai machine, and like this all. जागृति का प्रोग्राम हमने 2012 में अपर्णा जी ने अपने संरक्षण में रेजुनेशन के वॉलंटियर्स के साथ शुरू किया था. उस वक्त केवल 6 बच्चे थे जब शुरू किया था 2012 में. उसके बाद से आज करीब 14 साल से हम इसको आप लोग चला रहे हो, मैं तो नहीं चला रहा, आप लोग चला रहे हो. ये वो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हम लोग जिनको नाम देते हैं अपने बुक्स में, लिटरेचर में. ये ऐसे बच्चे जिनको सोसाइटी पास आने से भी कहती है दूर रहो, उनको आप लोगों ने गले लगाया. अपने आप के लिए एक बार ताली बजा ले. आई डू अपलॉड फॉर यू. और आज हम यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बहुत दिनों से अपर्णा जी के मन में एक वो आइडिया की तरह चल रहा था कि हमें चालू करना है. आज वो दिन आया कि हम कंप्यूटर की शिक्षा एवं सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क केवल एक 400 रुपये, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और 300 रुपया एक बार का लेके हम उनको सिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं. ये सब भी आपकी वजह से ही संभव है. प्लीज गिव अगेन योर सेल्फ. हम चाहते हैं इससे बहुत और लोग आके जुड़े कि इसको हम आगे बढ़ा सके इस चीज को. बाकी आगे का बढ़ाने के लिए सभी को नमस्कार. स्वामी को प्रणाम, गोविंद को प्रणाम. स्किल डेवलपमेंट क्लासेस का जो विजन था, जो लोग साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि एक ड्रीम विजन की तरह चल रहा था. और अभी 3-4 दिन पहले जब फर्स्ट
फॉर्म उसका फिल होकर के मेरे हाथ में आया तो एक नोट 50 का, एक 20 का और 3 10-10 के नोट जुड़े हुए, जैसे मुट्ठी में बहुत समय से दबाए हुए हों। उन नोटों पर उस मुट्ठी की सरवटें थी, मेहनत की कमाई के निशान थे। वो 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे लिए जागृति स्किल डेवलपमेंट का प्रतीक बन गया, विच आई नो आई नेवर फॉरगेट। और मैं चाहूँगी कि साथ काम करने वाले भी कभी ना भूलें कि कैसे वो मेहनत की कमाई हमारे पास आई, इस आशा के साथ कि इससे हम वो सीड दे सकेंगे, उस बीज को हम रोप सकेंगे जो आगे कभी बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, जिसकी छांव में बहुत से पथिक यात्री विश्राम पाएंगे। तो ये एक विजन था। जब जागृति शिक्षा संस्थान आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू हुआ था आज से 12-13 साल पहले, तब एक विजन था कि इन बच्चों को हम अक्षर ज्ञान दे सकें, जिससे कि इनका बौद्धिक और मानसिक विकास हो सके। और उसके बाद ये जागृति स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल जिसको हम कहते हैं, इसके लिए ये एक विजन था कि उनका कौशल बढ़ सके, उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता आ सके। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कौशल केवल एक तकनीक नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्निक। योगा कर्मसु कौशलम भगवद गीता कहती है। हम काफी समय से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भगवद गीता क्या कह रही है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ किया गया कर्म ही योग है। An action which is performed on the right time and place, the right action gives enormous result. And when you are not attached with that result, then the fruit is beyond imagination. So if we are working with detachment, ये detachment कब आएगा? यदि हमारा पेट खाली होगा, पहनने के कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए स्थान नहीं होगा, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डिटैचमेंट की। एक बार जब नरेंद्र के पास, विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, आप जानते होंगे, नरेंद्र के परिवार के पास खाने को नहीं था, भूखमरी छाई, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना की, बार-बार की, कुछ करिए, मेरे परिवार के पास खाने को नहीं है। उन्होंने कहा काली माँ के पास जाके मांगो। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, वो 3 बार गए, माँ के दर्शन करके इतना अभिभूत हो जाते थे कि कुछ कह नहीं सके माँ से, और हर बार वापस आ गए। तब अंत में वो रो करके अपने गुरु के पैर में गिरे कि मैं नहीं मांग पा रहा, पर आप दया करिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाओ, तुम्हारा परिवार आज के बाद भूखा नहीं रहेगा। उनके पास रहने की, पहनने की और खाने की कमी नहीं रहेगी। द बेसिक नेसेसिटी हैज टू बी कंप्लीटेड। यदि हम किसी बच्चे से उम्मीद करें कि वो हमारे भविष्य के लिए कुछ बड़ा करेगा, एज नागरिक, कंट्री का सिटीजन या वर्ल्ड लीडर बन के सामने आएगा, तो उसकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए, उसकी और उसके परिवार की। वो कैसे पूरी होगी यदि उनके हाथ में स्किल नहीं है। आज के भारतवर्ष में हम जानते हैं कि करोड़ों की पॉपुलेशन है, रोजगार नहीं है। तो यदि हम उनको इस लायक ना बना पाए, यदि भगवान ने हमें साधन दिए हैं और हम उसको यूँ दे ना पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं तो क्या है। तो यदि हम किसी एक बच्चे को भी खड़ा कर सकते हैं अपने पैर पे, जिससे कि वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाए, जिससे कि वो कार्य करने में स्वतंत्र हो, जिससे कि वो डर से आगे नहीं बढ़े, वो किसी भय से आगे नहीं बढ़े, किसी लालच से आगे नहीं बढ़े, वो कर्तव्य निष्ठा के लिए आगे बढ़े, तो क्या ये एक सपना पूरा करना नहीं है? केवल वो एक फॉर्म नहीं, मेरे पास जितने भी फॉर्म आए उनके नोटों की वही दशा थी, मुट्ठी में दबाए हुए नोट, वॉलेट में लगे हुए कायदे से नोट नहीं थे वो। आज हम कार्ड पेमेंट करते हैं, यूपीआई करते हैं, उसमें से एक भी वो पेमेंट नहीं आया मेरे पास। हमारे बैचेस फुल हो गए,
हमारे पास लंबी लाइन लगी हुई, आई एम हैविंग गूज़बम्प टू टेल यू दिस। तो यदि आज हम ये कर पा रहे हैं तो ये सब प्रभु इच्छा है, और उन्हीं की इच्छा से डॉक्टर रूबी ओझा हमारे सामने आई। इट वॉज अ कोइंसिडेंस। आपको भी मालूम है कि क्लास में जब मैं अनाउंस कर रही थी, लिजी जी मुंबई में सुन रही थी और कैसे तुरंत की तुरंत बालक बने, एंड शी इज हियर। ये भी बरसों से काम कर रही है, इतना ही सुंदर काम कर रही है, और आज इनके हाथों से नवरात्र के अंदर इनॉग्रेशन होना लिखा था, इसलिए हो रहा है। तो इसको मैं देवी की कृपा के रूप में देख रही हूँ, गुरु के आशीर्वाद के रूप में देख रही हूँ, गोविंद की कृपा के रूप में देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं यहाँ पे आप सबके बीच में रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी का, अपर्णा जी, समीर जी, चहक जी, और सारा परिवार, सब परिवार है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ कर रही हूँ, बस जहाँ प्रेरणा मिली, जहाँ भगवान ने लगा दिया, जो मुझसे कर पा लिया वो मैं करती जा रही हूँ। आगे भी भगवान जो चाहेगा वो करवा लेगा, और वो मुझे करना पड़ेगा। अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, ऐसा मैं समझती हूँ, लेकिन अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। हमको अपनी तरफ से जो समझ में आए वो करते रहना चाहिए, और हमारा प्रयास देख के भगवान हमें आगे मौके देता है कि आगे करिए। अगर हम बैठे रहेंगे कि हमको जब आदेश आएगा तब हम करेंगे, तो हम बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए अपने प्रयास जरूरी होते हैं। हो सकता है कि हम प्रयास एक दिशा में करें, हमें काम दूसरी दिशा में करना पड़े, ऐसा कई बार होता है। हमारी अपनी इच्छाएं कुछ होती हैं, हमें करना कुछ दूसरा पड़ता है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि जो दूसरा हमें करना पड़ रहा है वो बहुत ही अच्छा निकला, हमारे इमेजिनेशन से ज़्यादा अच्छा। ऐसा ही मेरा भी जीवन रहा है। यहाँ पे मैं स्किल, मुझे आदेश है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलूँ। मैं स्किल से शुरू, क्योंकि यहाँ पे स्किल की बात कर रहे हैं सब, आप सब एक कौशल केंद्र शुरू कर रहे हैं, पहले से ही शुरू है, शायद उसका कंप्यूटर शिक्षण अभी शुरू होगा। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, तो मुझे जो समझ में आता है सबसे ज़्यादा वो ये कि अभी हम एक 10 साल पहले तक बहुत रोना पीटना मचता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि सबसे पहले तो जनसंख्या कम करो, नहीं तो विकास संभव नहीं। अब हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, हम चीन से आगे निकल गए। मेरा ये मानना है कि एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्स, एंड इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली इट कैन बी अ डिजास्टर। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स, इट इज ह्यूमन रिसोर्स। हम पब्लिक नहीं हैं, हम ऐसे जनता नहीं हैं, हम रिसोर्स हैं। सारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको हम एक अगर रिसोर्स के रूप में देखें, जो कि है सबसे यंग पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो आप ने जरूर ये टर्म सुना होगा, जबकि यंग पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। जो 60 की उम्र के ऊपर वाले हैं या 14 की उम्र से कम वाले हैं वो कम है, और रेशियो जो बीच की वर्किंग पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हम देश के विकास में बहुत सक्षम योगदान कर सकते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन की संरचना है, जो डेमोग्राफी है,
वो इस समय ऐसी है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के विकास में। लेकिन ये जो यंग पॉपुलेशन है, जैसा मैडम ने कहा, सर ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं, जिनके पास शायद अपने रोज के जीवन यापन के रिसोर्सेज भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस 15 से 60 साल की उम्र के बीच के हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। उनको हम कैसे रिसोर्स बनाएं? उनको रिसोर्स बनाना हमारा कर्तव्य है। हम जो एक एज से ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसको ये दिख रहा है कि नीचे जो आने वाली जनरेशन है उसको हमने अगर रिसोर्स नहीं बनाया तो देश ध्वस्त हो जाए। दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अ डिविडेंड and also it can turn into a disaster if this resource is not converted properly and not used properly. इसका सबसे बहुत ज़रूरी उपाय क्या है? उनको कैसे यूजेबल बनाएं? तो स्किल से, एजुकेशन से, ये सब जो आप लोग कर रहे हैं, यही तरीका है। घर घर में इस तरह की संवेदना होनी चाहिए। घर घर में इस तरह का होना चाहिए कि हमको जो दिखे बच्चे ऐसे जो खुद अपने आप में समर्थ नहीं है, उनको हम कैसे समर्थ बनाएं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत मैं कहना चाहती हूँ कि एक छोटे स्तर पे बेबी स्टेप कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इसमें। अभी छोटा शायद लगेगा, अभी हम एक घर के रूम में हम ये व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। जितना जो भी काम ये मैंने थोड़ा बहुत पिछले 4-6 दिन में जो कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जागृति रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बारे में, मुझे ये समझ में आया कि ना सिर्फ मन अच्छा करना जरूरी है, बल्कि लोगों को स्किल बनाना जरूरी है। लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए हम काम करें। हम जो थोड़े से सक्षम हैं ये काम करने में, उनको अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। और तभी जाके हमारा देश इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज कर पाएगा। स्किल बहुत ज़रूरी है। जो कौशल विकास पूरा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, हमको उन सारी योजनाओं की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और हर एक योजना का लाभ लेना चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ये लाभ मिलना चाहिए। उससे हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लोगों को मालूम नहीं होता है, हमको ये जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और की ही होगी। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, उसमें से सब में से अभी आज तो मैडम ने किसी के योगदान से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और हम लेंगे और हम इसको बहुत एक बड़े स्तर तक ले जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मन से कर रहे हैं। तो ये ज़रूर आगे जाएगा, बहुत संभावनाएं हैं। अभी रास्ते में मैं चायक जी से बात कर रही थी कि कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, अच्छे मन से शुरू करते हैं, जब हम उपयोगी काम कोई शुरू करते हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं से फंड्स आ जाते हैं। तो हमारा काम अच्छा है, हमने मन से शुरू किया है, हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, ऐसा अपना पक्का विश्वास है। और स्किल डेवलपमेंट लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सिलाई, कढ़ाई, इस तरह की स्किल देना, स्किल देने की स्टेज पे हमें पक्का पता है कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। उनको स्किल दिला के आगे उस स्किल का क्या उपयोग है, कैसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरी पीएचडी मेरे अंडर में क्यू स्टूडेंट है लीजी संतोष, वो बता रही थी कि यहाँ पे इस तरह से उनका पीएचडी जो था वो केरला में कुटुम्बश्री करके एक योजना चलती है, कुटुम्बश्री कहते हैं,
उस योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। केरला में वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, बाकी प्रदेशों में उतना सक्सेसफुल नहीं है, यूपी में उतना शायद चला नहीं है। मैंने लीजी को सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा अपना कुटुंबश्री वहाँ भी चलाओ ना। और बहुत स्किल डेवलपमेंट, तरह तरह की इतनी योजनाएं होती हैं लोगों के दिमाग में, उनको मौके नहीं मिलते वो योजनाओं को सामने लाने की और उसमें काम करने की। ये हमारा काम है कि हम उनके लिए ऐसे संसाधन जुटा दें कि उनको अपनी सोची हुई योजनाओं में अपने जो कुछ जानकारी है उसको उपयोग करके इनकम अर्न करने में, क्योंकि जो मैडम ने कहा बहुत ज़रूरी कहा, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि खाली पेट राम भजन भी नहीं होता है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो कम से कम एक बेसिक मिनिमम नीड्स आपकी पूरी है तब आप विकास की सोचते हैं। तो इतना इनकम जनरेशन कैपेसिटी पहले तो जुटा देनी चाहिए कि बेसिक मिनिमम नीड्स पूरी हो, और उसके बाद आगे का उनका जो कार्यक्रम है वो उसमें अपना योगदान दे सके, अपना मानसिक श्रम उसमें लगा सके, अपनी सोच आगे कर सके, सपने देख सके। सपने पे किसी का कोई रोक नहीं है और ना होना चाहिए। सपने देखेंगे हम तभी हम उसको रियलाइज करेंगे। जीवन में बहुत जरूरी है उद्देश्य होना। हमको पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं तो हम किधर भी भटक जाएंगे। अपने जीवन का एक हमने अगर लक्ष्य बनाया हुआ है, वो लक्ष्य हर दिन बदलता रहना चाहिए। जैसे जैसे हम एक अचीव कर लिया एक स्टेज, आगे की स्टेज वो अचीव कर लिया, उसके आगे। तो ऐसे जो एवर ग्रोइंग ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स मन में अगर नहीं है तो मुश्किल है आगे बढ़ पाना। और उस तरह की सोच हम तभी कर सकते हैं जब अपनी कम से कम बेसिक नीड्स तो पूरी हो। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है, ये मैंने जब मैडम आपका सरनेम देखा तो मैं 92 में सिडनम कॉलेज में पढ़ाती थी, 92-93 में मुंबई के। वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था गौरव नेवतिया। तो वो मेरे स्टूडेंट, और एकदम से मुझे 92 की बात, इतने सारे स्टूडेंट जीवन में आए चले गए, लेकिन ये नेवतिया पहली बार तब सुना था उसका सर ने, फिर दोबारा मैडम का सुना। मैंने कहा ये तो गौरव नेवतिया वाले नेवतिया हैं। बॉम्बे में राजस्थानी सर है, बॉम्बे में बहुत हैं, गुजराती, मारवाड़ी, सब बहुत बहुत विकासशील कम्युनिटी है, बहुत योगदान है उनका मुंबई को मुंबई बनाने में। तो इस तरह से ये जो काम शुरू हुआ है ये तो यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। और सबका सहयोग, इतना सहयोग मिल रहा है। और जो मुझे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है, सब ऑलरेडी एम्पावर्ड लोग हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेरी सोच ये है, कोई आपको एम्पावर नहीं कर सकता, आप खुद एम्पावर्ड हो। और पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी एम्पावर्ड विमेन आप क्रिएट कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऑलरेडी एम्पावर्ड हो, इतना पावर है, खाली उसको रियलाइज करने की और उसको निकालने की जरूरत है, उसको उपयोग में लाने की जरूरत है। Women are already empowered, नहीं सर? नहीं, मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे एड्रेस ही ऐसे करना था। मैंने जो सोचा था कि मैं कैसे बोलना शुरू करूँगी, जो सब गड़बड़ हो जाता है ना हमेशा, जो सोच के आती हूँ वो अलग हो जाता है, जो बोलती हूँ वो अलग हो जाता है।
और इसलिए मैं कई बार छोड़ देती हूँ। बस वही जो मैंने कहा कि अपना प्रयास करना चाहिए, इसलिए प्रयास थोड़ा कर लेती हूँ, पर मालूम रहता है बोलूँगी कुछ और। तो यहाँ पे जो मंडली मौजूद है, फेमिनिस्ट विमेन एंड मेन। फेमिनिस्ट का मतलब मैं ये लेती हूँ कि जो महिलाओं के उत्थान में और उनको आगे बढ़ाने में रुचि रखें, और जिसमें कोई किसी तरह का ये नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं। महिला और पुरुष में फर्क भारतीय ज्ञान में नहीं समझा गया है। तो हम सब बराबर हैं, सब एक रास्ते के ही चलने वाले हैं। उसमें कुछ लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं किसी चीज़ में, कुछ लोग किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो हमको पूरक के रूप में काम करना चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम झंडा लेके खड़े हो गए और विद्रोही बन गए, वो विमेन एम्पावरमेंट मैं नहीं मानती। विद्रोह कभी कभी जरूरी होता है, घर में झगड़ा वगड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन वो विद्रोही स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म का ये मतलब है कि पूरक है एक दूसरे, कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं हम नहीं कर सकते। हम मिल के ऐसा करें कि सब काम हो जाए सहूलियत से, अच्छे से। तो इसलिए जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है वो सिर्फ महिलाओं से संबंधित है ऐसा नहीं है, वो हमारे सारे बच्चों से संबंधित है, सारे पुरुषों से संबंधित है। और इस तरह से होना चाहिए। किसी नोबेल प्राइज विनर से पूछा गया कि देश में, विश्व में महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या सोचते हैं कि कैसे होना चाहिए? उनका जवाब था, परिवार में महिला सशक्तिकरण, सब जगह अपने आप हो जाए। तो परिवार से शुरू होने वाली ये चीज़ है। और परिवार में जब हम देखते हैं कि और इंडिया में, भारत में अगर आप देखिए तो हम लोग जब पढ़ाते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो 4-5 तरह से एम्पावरमेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, होना चाहिए। उसके लिए बहुत योजनाएं हैं, बहुत काम भी हो रहे हैं, सरकार की बहुत नीतियाँ हैं, सब हो रहा है। ठीक है एक तरह से, इसलिए ठीक है कि वो टेंजिबल पैरामीटर्स हैं जिस पे हम नाप सकते हैं कि हाँ विमेन एम्पावरमेंट इतना बढ़ा, इतना नहीं हुआ, इतना हुआ। वो पैरामीटर्स टेंजिबल। पर विमेन एम्पावरमेंट कोई करा नहीं सकता। कोई ये कहे कि हम विमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े समर्थक हैं और हम विमेन को एम्पावर कर रहे हैं, आप होते कौन हो विमेन को एम्पावर करने वाले? कोई नहीं होता। खुद हर व्यक्ति अगर अपने अंदर से सोच नहीं उपजती है तो एम्पावरमेंट नहीं आएगी, सामने से थोपा नहीं जा सकता। और भारत में अगर देखा जाए तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये सब में काफ़ी विकास हो रहा है उस दृष्टि से अगर देखा जाए टेंजिबल पैरामीटर्स के बारे में। लेकिन बहुत सारे चैलेंज शुरू कहाँ से होता है? जन्म ले कि न ले, जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा। आप कर क्या लोगे? जो मैं खुद अपना ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ बात कि अपने अंदर से आएगा तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। आपको जन्म ही नहीं लेने दिया गया तो आप क्या एम्पावर कर लोगे? उसमें भी बहुत सजगता आई है। काफ़ी सरकार ने प्रयास किए हैं फीमेल फिटिसाइड के बारे में, उस पर बहुत कंट्रोल लगाया है। तो वहाँ की जंग जीतना ये सब जगह नहीं है, ये भारत का विशेष है। और क्यों है उसके क्यों में जाना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर में बच्चियाँ हों? मतलब जो लोग नहीं चाहते उनकी बात करनी है, क्योंकि सामाजिक
वहाँ पे आता है सोशल एम्पावर। समाज ऐसा है जो बच्चियों को बड़ी होंगी तो उन्हें पढ़ने नहीं देगा, उन्हें नौकरी नहीं करने देगा, उन्हें घर में नहीं रहने देगा, उनसे दहेज मांगा जाएगा। तो हर स्टेज पे प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालिए? पैदा ही मत होना, which is not a solution, which is a very cruel thing to do। तो समाज का जो, अब समाज क्यों नहीं ठीक करते हो? उसमें बच्ची का क्या दोष है ना? तो इस तरह से जो विमेन एम्पावरमेंट हम लेते हैं तो इतने मूल रूप से, इतने मूल स्थिति से लड़ना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए। तो पहले अस्तित्व के लिए लड़े, उसके बाद आगे आता है कि भाई घर में पैसा नहीं है, लड़का अगर है तो उसको अच्छा खाना खिला दो, लड़की को ठीक है, लड़की को काम करा दो, वो दूसरे बच्चों की देखभाल करे क्योंकि माँ भी काम पे जा रही। हर स्टेज पे, हर कदम पे परेशानियाँ हैं। उसको कम करना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। दैट इज सोशल एम्पावरमेंट। दैट इज वो जो पैरामीटर्स हैं ना, वो टेंजिबल है, जरूरी है, पढ़ाने के लिए जरूरी है, उससे समझ में आता है कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उसमें रिसर्च में आंकड़े पता चलते हैं। पर असली जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है वो उसमें 7-8 चीजें हैं जो हर लड़की को, अगर हर महिला अपने आप में ध्यान रखे, या हर पुरुष भी, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, तो अपने आप में एम्पावरमेंट हो ही जाता है। जैसे कई बार होता है कि हम अगर कुछ अलग दिखने की, करने की, या अपने मन से कुछ समझ में आया है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर छीटाकशी करने वाले बहुत लोग निकल आते हैं, जजमेंट देने वाले बहुत निकल आते हैं। अरे इसने ऐसा कपड़ा पहना, अरे इसने ऐसा मेकअप किया, अरे इसने ये ऐसा किया, वैसा किया, ये तो बाहर पढ़ने जा रही, ये तो घर में सुनती। पहली चीज है कि इग्नोर करिए। सुन लिया ना? 2 तरह के लोग होते हैं। इस तरह की शिकायतें 2 तरह के लोगों से आती हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो आपके हित चिंतक होते हैं, जो कुछ चीजें ऐसी बताते हैं कि जिससे अपना इम्प्रूवमेंट हो। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो आपको, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में भेद करना समझें, हम लोगों को समझें। सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, वो कैसे हैं। और औरतों में ये 6 सेंस होता है हर तरह से, सिर्फ इसलिए नहीं कि कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट होने वाला है वो पता चलता है, हर चीज पता चलती है। पीछे कोई बोल रहा है, पीछे आंखें नहीं है, पर पता चलता है कि पीछे अपनी कुछ तारीफ हुई है। इसलिए ये सेंस अपना जागृत रहना बहुत जरूरी है। हमको हर चीज छोड़नी ही देनी है। कुछ लोग हितचिंतक भी हैं, कुछ अच्छा बता रहे हैं, उससे इम्प्रूव करना, लेकिन ज्यादातर चीजें इग्नोर करने वाली होती हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आप करिए। आप अपना देख के एनवायरनमेंट और अंत कैसा, मेरा पर्सनल ये सोचना है कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने देश को, अपने विश्व को, अपनी धरती को, हम जिस स्थिति में पैदा हुए हैं अगर उससे कुछ बेटर बना के जा सके तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन। और हमारा सबका यही प्रयास कर, मेरा जीवन का एम ये है। उसमें किस तरह से योगदान होगा वो ईश्वर की कृपा है। अपनी तरफ से ये लॉन्ग टर्म ये है तो वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा एम होना चाहिए जीवन का जिसपे आप हमेशा बढ़ते चले जाएं, एक के बाद एक, स्टेप वाइज। उसका वो कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज तो रिटायर हो गया, खत्म। ऐसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कर्म जरूरी है।
हम बेडरिडन हैं तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने 5-7 पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक तो ये था कि इग्नोर करना चाहिए जजमेंट्स लोगों के, कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर मत करिए फला ऐसा है हमको ऐसा करना है, नहीं, अपने को जो सूट करे वो करना है ना, अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। और कंपैरिजन करके ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे को नीचे खींच लाएं, हम आगे बढ़ जाएं, ये तो एकदम नेगेटिव है। कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन बताना भी नहीं चाहिए दूसरे से, कंपैरिजन के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत किसी से उम्मीद रखी ना, मान लीजिए टूटेगी। उम्मीद किससे रखनी है? खुद से, अपने आप से। जितना हो सके अपने आप से उम्मीद रखिए, दूसरों से उम्मीद रखी, मान लीजिए टूटेगी। दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को आप खुश कर ही नहीं सकते कितना भी कर लीजिए, अपने आप को खुश रखिए। If you will try to please all, you will please none. बहुत पुरानी saying है। If you will please one, you will please all. तो one मतलब सेल्फ, अपने आप को खुश रखिए, दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करना। अपने को अच्छा लग रहा है तो दूसरों को खुश भी करिए, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हर्ज है। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके लिए कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, वो खुश करना नहीं, वो अपनी खुशी के लिए। अपने अंदर से देखिए आपकी क्या इच्छा हो रही है। अकेले रहना चाहिए कभी, वो लोनलीनेस नहीं होता है, वो सॉलिट्यूड होता है, जिसमें हम सोचे अपने बारे में, हम अपने को समझें, हम दुनिया को समझें, हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य समझें, दूसरे कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा विचार करें, कौन कैसा है इसके बारे में विचार करें, कौन हित चिंतक है, कौन हमें दबा रहा है, इसके बारे में विचार करें। इसलिए अकेले रहना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अपने गुस्से पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे। उसकी वजह से हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो कि योग्य नहीं है, इस उतना कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे कभी कभी तो सभी झगड़ा करते, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना कि वो मन में बैठ जाए, निकले नहीं, हम गलत ड्रास्टिक स्टेप्स ले लें, वो चीज़ ठीक नहीं है। आजकल बच्चों में कितनी प्रवृत्ति हो रही है, घर छोड़ के भाग जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे जो हैं यहाँ पे, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आपके साथ, हम जब उनकी एज में थे तो हमारे पास उतनी चुनौतियाँ नहीं थी जितनी आज उनके पास है। हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसको फिल्टर करने में हमें अपना टाइम लगाना पड़े जितनी उनके पास। उनके पास जितना कंपटीशन है उतना हमारे पास नहीं था। वो उतने अकेले हैं, उतने हम अकेले नहीं थे। उनके वो फ़ोन लेके अकेले हो जाते हैं, हम उतने अकेले नहीं हैं। उनके फ्रेंड्स कहाँ के हैं? वर्चुअल। हमारे फ्रेंड्स रियल थे, हम बात कर सकते थे। हमारी चुनौतियाँ उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज उनकी चुनौतियाँ हैं। हम समझते हैं आपको, और हम ये चाहते हैं कि आपको जब भी परेशानी हो आप हमसे हेल्प लें, खुले। आप अपने स्कूल में जाएं, अपने अल्मा मेटर में जाएं, अपने पेरेंट्स के पास जाएं, अपने टीचर्स के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, अपने एल्डर्स के पास जाएं। और ये पूरी पीढ़ी जो है वो आपको समझती है, और मैं उनके बिहाफ पे कह सकती हूँ कि वी विल लिसन टू यू, वी विल ग्रीट यू विद ओपन आर्म्स इफ एनी टाइम at any difficult time you come to us. But don't take drastic steps. Don't go in depression कि कोई है नहीं बात करने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आदतें जो है ये अपने को एम्पावर करती है, न कि
कोई महिला सशक्तिकरण का सरकारी प्रोग्राम, वो भी जरूरी है मास लेवल पे, लेकिन पर्सनल जो मैं मानती हूँ महिला सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट फॉर एनीबॉडी, वो इट कम्स फ्रॉम विद इन। और हर व्यक्ति सशक्त होता है, बस उसको समझने की देर है कि हम किस मामले में सशक्त हैं, हमको किस दिशा पे आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। अभी जैसे मैडम ने समझ लिया है और अब हम सब उनसे समझने की दिशा में जरूर कहना पसंद करती हूँ। और बहुत कुछ मैं सीखने की उम्मीद से आई हूँ, ना कि बताने के लिए। कुछ मैंने कहा ये सब आपको मालूम है। अगर आप कुछ चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आप ऐसा पूछना चाहें जो मैं किसी के कह पास सकूं। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। बच्चे भी पीछे से बोल सकते हैं। ये दे दीजिए, अपनी जगह से भी बोल सकते हैं अगर कोई बोलना चाहे। मैं शुरू करना चाहूँगा। बोलिए, आप वहाँ से अपनी जगह से भी बोल सकते हैं। ये हम लोग जो आज के दिन में स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे जी हैं, जी तो ये मैंने अपने मतलब जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ, अगर हम एक धर्म या उसके रिलीजन के हिसाब से बात करो तो आप देखेंगे कि हिंदुओं में ये चीज़ें बहुत कम है। हम बच्चों को कुछ सिखाना ही नहीं चाहते वास्तव में। एक पढ़ाई के अलावा हम हर समय बच्चों को अपने ऊपर ही डिपेंडेंट बनाते हैं। अगर आप देखें तो बच्चे कपड़े तक भी नहीं उतार सकते आज के दिन में, ठीक है। और हमें इतने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं उनको काम कराने के लिए, लेकिन उसमें भी लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम इसी की तरफ दूसरी तरफ जाते हैं, जो अगर आप मुसलमानों को देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे बच्चा आज के दिन आप हर चीज़ पे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बाल कटाने जाना चाहते हैं, आप किसी टेलर के पास जाना चाहें, आप पंचर तक भी बनवाना चाहें, तो आपको जितने भी जने दिखेंगे वहीं पे दिखेंगे। हमारे एंड पे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मैकाले पद्धति कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हम ग्रेजुएशन और ये सब काम को छोटा समझते हम बहुत छोटा समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो उस चीज़ को हम घरों में कैसे उस चीज़ को डेवलप करें कि स्किल डेवलपमेंट बचपन से ही लोगों में एक चीज़ आए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जिस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों को शुरू से ये सब चीज़ें सिखाई गई कि आप लकड़ी का काम सीखिए, आप पेंटिंग का काम सीखिए। आप आज के दिन मैं इस चीज़ में बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस स्कूल में पढ़ा जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ सिखाई गई। और उस चीज़ के अंदर मुझे आज के दिन अगर कोई कह दे कि मुझे एक कुर्सी बनानी है, तो शायद मैं उसको बना लूँ। मे बी स्किल्ड ना हूँ, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो मेरी, बस एक्सपर्टीज नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मुझे स्कूल में वो चीज़ सिखाई गई। आज के दिन वो सब चीज़ें स्कूल के सिलेबस से या क्यों गायब हो गई, या कभी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। हम आज के दिन बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, भारत सरकार इतने कौशल विकास केंद्र चला रही है, उसके अंदर हम चूँकि बचपन से ही किसी चीज़ को नहीं सिखाया गया, तो हम उस चीज़ को, जैसे आज के दिन एग्जाम्पल के तौर पे खाना बनाना, आप देखिए पहले लड़कियां जो थी खाना बनाना सीख लेती थी, फिर भी आज के दिन किसको वो सब कैरियर पे लगे, ठीक। लड़कों को कभी ये कहा ही नहीं गया कि तुम लड़कों मतलब खाना बनाना भी सीखो, ये इज़ वेरी गुड स्किल। उस दिन मैं इनको सुन रहा था, किरण बेदी को, उन्होंने कहा अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खाना बनाना सीख लीजिए जिससे आप डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। अगर आप देखिए, ठीक है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें घर में क्यों नहीं शुरू करते स्किल डेवलपमेंट। बनस्पत के हम मतलब किसी जगह पे हम किसी बच्चे को नहीं कहते कि भैया तुम आयरन करना सीख लो, कपड़े धो कर सीख लो, हम बाहर भेजते हैं उसको। हमारे को कपड़े धोने हो, जूते पॉलिश करने हो, हर चीज़ के लिए हमारे समाज में कम से कम कोई ना कोई अवेलेबल है जिसको हम बच्चा कहता है ये लो जरा, एक घड़े से पानी तक भी नहीं पी सकते हम आज के दिन में। तो हम इतने बड़े लेवल पे आके स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो क्यों करते हैं, शुरू से क्यों नहीं करते, ये मेरा कहना है और ये मेरी चर्चा का विषय है। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है सामने। शुरू में जो मैंने पहले ही कहा कि
एम्पावरमेंट जो है वो फैमिली से, घर से शुरू होना चाहिए। एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी शर्त ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। जो हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो मतलब फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो। जो हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो ये कि सामाजिक रूप से हम सक्षम रहें, लोगों से बातचीत करना, ये वो जो अपनी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो अच्छी रहें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चों को काम कराना मतलब अभी एक शब्द है नियो रिच। हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, वो नियो रिच की स्थिति में है, जिसको कहते हैं कि नए नए जो अमीर हुए हैं। तो उनको ये लगता है कि बच्चे काम करेंगे, बच्चे ये नहीं खुद भी नहीं करेंगे, वो घर में हर चीज़ों के लिए जैसा आपने कहा कोई ना कोई उपलब्ध है जो करके दे रहा है। जब हम छोटे थे हम तो खुद ही पॉलिश करते थे अपने जूते भी, खाना भी बनाना, कभी कुछ हो गया माँ भी मार रहे हैं, कुछ है, अपने आप इसी तरह से सीखा है। लेकिन कोशिशें भी माँ बाप की ये रहती थी पहले, जब हमारे माँ बाप, अब के माँ बाप भी बदल गए हैं और बच्चे तो बहुत बदल गए हैं। और अब की जनरेशन से मुझे सिंपैथी, मुझे उनके ऊपर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, वो उनका दोष नहीं। हमने एज ए माँ बाप उनको इतना कंपटीशन में डाल दिया कि बेटा 90%, मतलब हम लोग तो 60% में लगता था कि अरे वाह लड्डू बढ़ कैसे कैसे और अभी 96% वाला बच्चा रोता है कि वो तो दूसरे के तो 98 आ गए, 100% कट ऑफ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कंपटीशन में ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा सिखाया, ऐसा करने के लिए विवश किया। ऐसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम उनको हर तरह की सुविधाएं देते हैं जिसमें उनकी खुद की लाइफ स्किल जो है वो रह जाती, नेग्लेक्ट हो जाती। तो जब जाग जाए तब से सवेरा, तो ये और जो ये व्यवस्था मतलब हम जब बच्चे थे तब तक ग्रैंड पेरेंट्स और उनका एक से रहता था घरों में। जो चीज़ें थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती थी, जो अपने संस्कार जिसको हम कहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते थे। अब कैसे न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप भी बाहर काम करने चले गए, बच्चे जो हैं वो मेड सर्वेंट के उससे पल पढ़ रहे हैं, उसका संस्कार ले रहे हैं। तो अपने आप कुछ कर नहीं सकते, तो चारों तरफ फौज रख दी है सर्वेंट्स की, जो जिसके ऊपर वो अपने हुक्म चलाते हैं, काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, नहीं खाएंगे, ये नहीं वो नहीं, मतलब माँ बाप के ऊपर जो हुक्म नहीं चलता है वो सर्वेंट्स के ऊपर निकालते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हमने पैदा कर दी हैं, हमने दे रखी है बच्चों को, तो थोड़े संस्कार हमें अपने भी सुधारना चाहिए पहले। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कम से कम अपने काम तो खुद करो रोज़ के, अपने आप टाइम होना चाहिए कि अपने आप उठ जाओ, अपने आप स्कूल चले जाओ। अपने कहाँ होते थे हम लोग के पेरेंट्स ने, कब हमें उठाया और बड़ा लाड़ प्यार से कि एक आध थप्पड़ जरूर लग जाते, तो ये मारना नहीं चाहिए सबसे गलत, एक आध थप्पड़ तो लगा ही देना चाहिए। नहीं मतलब मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बोल रही हूँ। ये भी रिकॉर्ड हो गया कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन मानने से मेरा ये मतलब है कि एक बड़े और छोटे का लिहाज तो होना चाहिए ना, उनको एक मन में डर होना चाहिए कि हमसे बड़े लोग हैं, जो वो कह रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए। अभी आज की जनरेशन ट्रेन में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, हम अभी तक अभी 62-63 साल की उम्र है, लेकिन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट दिख गई या कोई इस तरह का दिख गया, कोई अपने से ज़्यादा उम्र का दिख गया, खड़े हो जाते हैं, नहीं आप बैठिए। आजकल I also have paid for the ticket. Paid for the ticket. वो नहीं उठेंगे, नहीं जगह देंगे।
मेरी खुद की स्टूडेंट का मैं हाल सारे स्टूडेंट वैसे नहीं होते हैं, लेकिन बस में जा रहे थे हम और स्टूडेंट एक बैठी हुई थी, मैं उसके पास मैं बाद में चढ़ी, उधर चलते चलते वहाँ आगे तक पहुँची, उसके पास खड़े होकर हाउ आर यू, वो मुझसे बैठे बैठे आराम से बात कर रहे थे, मैडम ये वो हमने ये तैयारी कर ली, वो कहीं पिकनिक वगैरह हो रहा था, बैठे बैठे बात कर रहे हैं, हंस रही, 5 मिनट हो गया तो पीछे जनरल सेक्रेटरी था कॉलेज का, वो खड़ा, ये कौन है जो मैडम से बैठे बैठे बात कर रहा तब उसको समझ में आया, उसको समझ में ही नहीं आया कि वो कुछ गलत कर रही। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों कहूँ कि तुम उठो मुझे बैठने दो। जो रेस्पेक्ट होती है वो अर्न की जाती है, रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, आप नहीं दे रहे हो ठीक है, पर उसको वो समझा ही नहीं कि ये भी रेस्पेक्ट है, वो कुछ गलत कर रही है उसको समझाई। क्या करें, ऐसे लोगों को, बच्चों को हमें ही समझाना है। सारे नहीं होते हैं वैसे, लेकिन एक लार्ज पॉपुलेशन है वैसे। और मैं पिछले 35 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं बच्चों को बदलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी देख रही हूँ। बदल गए बच्चे भी, टीचर्स भी बदल गए। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनो, टाइम है? हाँ बिल्कुल, आप सुने। इस पे ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पे एक मनोहर पर्रिकर जी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी नहीं रहे, तो वो आईआईटी मुंबई से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और गोवा में उनका गांव था जहाँ से वो आते थे, शायद पर्रिकर गांव था, परी गांव। तो वो बहुत साल आईआईटी में रहने के बाद कई साल बाद गांव गए। एक समय सबकी जीवन में आता है कि जब हम हर गर्मी की छुट्टियों में गांव भागते थे, अब उसके बाद एक आ जाता है कि हायर लेवल की स्टडीज़ है, छुट्टी नहीं है, ये है वो है, बहुत साल बीत जाता है, गैप हो जाता है। वो कई साल बाद गांव गए तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया, देखा कि उनके गांव के तरबूज बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े मीठे तरबूज, और अब वो नहीं रही फसल वैसी। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो गया। जब हम उन्होंने सोचा कि जब हम बच्चे थे तो इतने अच्छे तरबूज होते थे, अभी ये इसमें क्या हो गया। तो वो किसान के यहाँ गए जो तरबूज की खेती करता था। तो वो किसान नहीं थे, किसान का बेटा था। तो उन्होंने किसान के बेटे से पूछा कि ये फसल क्यों खराब होती चली जा रही है और अब वैसे तरबूज नहीं है, क्या हो गया, इस साल ठीक नहीं है, क्या हो गया। तो और फिर उन्होंने याद दिलाया पर्रिकर जी ने कि जब हम लोग बच्चे थे, मतलब जब वो बच्चे थे, तो ये जिस किसान के यहाँ हो गए थे उसके पिताजी बच्चों की हर साल दावत करते थे तरबूज के सीजन में, और एक कटोरा रखते थे सामने जिसमें सारे बच्चे सीड्स कलेक्ट करते थे और वो ही सीड्स अगली फसल में यूज होते थे। तो इन्होंने बताया बेटे को कि तुम्हारे पिताजी ऐसा करते थे, हम लोग को याद है ये। तो बेटा बोला हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं। पर ये पर्रिकर जी ने ऑब्जर्व किया कि जब वो छोटे थे, बच्चे की तरह वो आते थे इसमें तरबूज पार्टी में, तो जो पिता किसान था वो बच्चों को बेस्ट तरबूज देता था खाने के लिए, जो उसकी फसल के सबसे अच्छे बड़े मीठे तरबूज होते थे, और उसके सीड्स कलेक्ट होते। और बेटा जो कर रहा है, बेटे की भी पार्टी उन्होंने देखी, बेटा जो कर रहा है, जो अच्छे वाले तरबूज हैं वो तो सब मार्केट में बेच दिए, जो टेढ़े मेढ़े पके कच्चे पीले हरे वैसे वाले हैं वो निकाल के दिए बच्चों को खाने के लिए, और उसके सीड्स कलेक्ट हुए जो अगले उसमें काम आए। ऐसे करके जनरेशन दर जनरेशन फसल बिगड़ती थी। तो हम जो परंपराएं निभाते हैं ना, इससे एक चीज मुझे जो समझ में आई वो ये कि जो हम परंपराएं निभाते हैं, कई बार हम बस ऐसा माने किया था, ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा दादी करती थी, ऐसा हम कर रहे हैं, उसका मर्म समझे बिना। हमें लगता है कि हम तो वैसे ही कर रहे हैं, फिर वैसे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये
बाई चॉइस प्रोफेशन। अभी क्या कुछ नहीं मिला, चलो टीचिंग कर लेते हैं, तो वो फिर टीचिंग भी वैसे ही करें, बच्चे भी वैसे ही निकले, पढ़ाएंगे भी वैसे ही। तो ये चीज़ें हैं। ये कहानी मैंने बहुत पहले, कहानी तो नहीं, ये संस्मरण है, बहुत पहले कभी पढ़ा था, लेकिन ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है। मैं कहीं भी टीचर्स के बीच में होती हूँ तो मैं कोशिश रहती है जिसने ना सुना हो मैं उसको सुना दूँ। और इतना इसमें भाव है इस कहानी में कि इससे अगर हम सोचें कि हम आज की जनरेशन में आज हम क्या काम कर रहे हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, तो उतने से ही बहुत कुछ सुधर जाएगा। आपका बहुत अच्छा था, और भी कोई बोले तो मैं कम बोलूंगी। आप लोग बोलिए। एक्चुअली अभी आपने जैसा बताया था कि विद्यालयों में जो है स्किल के प्रोग्राम उन्होंने करे हैं, तो आज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि टीचिंग जॉब में मैं भी रह चुकी हूँ, तो स्किल प्रोग्राम जो है नई शिक्षा नीति में आ गए हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि टीचर्स का है कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो केवल नंबर दे देते हैं बच्चों को, बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो उसके लिए अगर हम ये जैसे आपकी संस्था सब करते हैं, छोटे स्कूलों में जाएँ और एक्चुअल में इसके प्रोग्राम कराए जाएं, तभी हो पाएगा, वरना वो लोग स्कूल वाले टीचर्स और प्रिंसिपल कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कहते हैं कि हमारा खाना फ्री हो गया और हमने सेशन खत्म कर दिया, फिर नंबर भी आ गए। तो वही आपसे मैडम, आपके लिए ये संभावना है। अब आप अपने स्किल प्रोग्राम्स में जो स्किल पढ़ाते हैं टीचर्स, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, और जरूर होगा। कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक है वो आत्मज्ञान ध्यान साधना का है, और इसमें जो आती है कोई वुमन मैन जो भी आ रहा है कि वो तैयार हो रहे हैं, जिसमें जो हम कहते हैं ना, सिखों में कहावत है ना कि एक एक 1.25 लाख के बराबर है। तो आप एक सविता को देखिए या एक कविता को देखिए, एक शालिनी को देखिए, तो वो 1.25 लाख के बराबर है जो आगे जाके काम करेंगे। ये सबके लिए, ये मतलब जो यहाँ पे जितने लोग सुन रहे और हैं, ना केवल ये लेडीज बल्कि जो बच्चे, जो हमारा नई पीढ़ी आ रही है, जैसे नई पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम चेक्स मिलते आए तो आप बैठो बेटा। और भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, आरुषि है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। हमारी यंग एजुकेटर की अलग शाखा है, तो जिसके अंदर वो बच्चे तैयार हो रहे हैं जो न केवल खुद उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, बल्कि वो औरों में स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक जो भगवद गीता है और जो हमारे संदेश है, ये रूट में पहुंचता है और पर्सन को कर्मयोगी बनाता है। तो वो अपने आसपास का सुधार करेगा ही करेगा, कि जैसे लाइट है, जल गई तो प्रकाश देगी ही देगी, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रूट में एकदम काम कर रहे हैं, और ये सब जो 1.25 लाख के बराबर वाले हैं, ये लोगों का काम है कि आगे जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नमस्कार। सबसे पहले वी वेलकम यू, और बहुत आपने यू केम हियर टू एनलाइटन अस, वेरी नाइस, और बहुत ही अच्छी, जैसे आपने बीच वाली बात करी कि एज यू सो सो यू विल रीप, यू नो, सो दैट इज अ वेरी ओल्ड सेइंग। और आई वांट टू कांग्रेचुलेट प्रणा जी एंड समीर जी फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव जागृति, व्हिच विल प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट। और जैसे कि मेरा भी प्रोफेशन ऐसा रहा कि हम लोग जब बाहर निकले तो एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते थे, तो वहाँ पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें एक छोटी सी चीज़ सीखी कि स्किल डेवलपमेंट में कहा कि CCP, जो सर ने अभी बात कही, CCP का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातें। तो हम लोग क्या थे, जब हम लोग घर से निकले, तो जब प्रोफेशनली जब हम टूर पे जाते थे, तो क्या होता था कि जैसे मान लो शर्ट का बटन टूट गया, अपने को सुई धागा अब हमें वो तो सीखा नहीं, सीखा। तो ग्रेजुअली फिर उसको किसी तरह, क्योंकि एवरी टाइम वी कैन नॉट गो टू द टेलर,
Similarly, other ways also, मतलब with all the regards here, sitting ladies here, मान लो हम टूर पे जाते थे, हमारे पैजामे का नाड़ा निकल गया था, मेल और कुछ आते नहीं, तो देखिए जब वो पता चला फोन करके कि आप जो है बिग ब्रश लीजिए और उसको लेके बाहर जाके फिर आप जो है तो वीडियो कॉल करके वो बताना, तब तो वीडियो नहीं होते थे, तब तो वीडियो नहीं होता था, तो बहुत सही बात है कि हम लोग को सबसे पहले जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमें अपने घर से सीखनी है। दूसरा बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम विमेन को एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि जब से हम अपनी आँख खोलते हैं तो मेरी माँ को जब हम पैदा होते हैं कि मेरी कान में दर्द हो रहा है या मेरी पेट में दर्द हो रहा है, ये मेरी माँ जानती है, बिल्कुल तो उनको पता होता है। एंड ग्रेजुअली एक माँ ही जो है जो लेडी होती है, पहले लिमिटेड इनकम होती थी, उसी में वो घर चलाती थी, उसी में वो सेविंग करती थी और उसी में वो कराती थी। तो दैट वाज, तब तो हम लोग ना वेल्थ मैनेजमेंट की बातें जानते थे, ना हम टाइम मैनेजमेंट की आजकल बड़ी बड़ी MBBS की IBS की बातें होती हैं। तो वी सल्यूट द women, you know, already you are already empowered, and I congratulate once again and the whole rejuvenation team, क्योंकि it is a team effort and it's a great initiative, great job, and my heartiest congratulations. And thank you for coming here. It was nice meeting you. It's my pleasure. पीछे कोई any question, any discussion, any insight? ये मैडम इधर जय मैडम। और एजुकेशन में उन्होंने स्किल बहुत अच्छा है। नाइस टू हियर यू, बहुत अच्छा लगा आज मैं हर आदमी चाहता है सीए की डिग्री लो, इंजीनियरिंग की डिग्री, अरे स्किल का मतलब ट्रेनिंग पर्सन कह सकते हो, ट्रेनर। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग को आता है, जैसे कि मैंने बताया सभी जानते हैं, मैं ऑलरेडी इम्पावर्ड हूँ, वो इनबिल्ट होता है, मेरे डिफॉल्ट होता है, लेकिन उसको जगाने में हम लोगों की चीखें आ जाती हैं। अगर हम किसी को ये समझा रहे हैं कि फिनेंशियली तुमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी प्रोग्राम में आप हिस्सा ले लो, हम सिखाते हैं, पर उनको लगता है मैं क्यों कमाऊँ, मेरा पति है वो IAS OPC है, यानी मजदूर भी है, तो भी मैं क्यों कमाऊँ, ये उसका काम है। मेरा वर्क है किचन में काम करना और बच्चों को संभालना, टाइम से जब वो आए तो उनको चाय देना, उनके आगे सेवा में खड़े हो जाना, इससे ऊपर सोशल सर्विस सोचते ही नहीं है। तो हम लोग जब 100 लोगों को मैम अपने में प्रोग्राम में शामिल करते, उसमें से सच में 2 या 3% मैक्सिमम 10 लोग ही निकल के बाहर आते हैं एम्पावरमेंट की तरफ, फिनेंशियल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो ये चैलेंजेस हम लोगों को बहुत मिलते हैं और इसी वजह से हम लोग थोड़ा दुखी भी होते हैं। अगर हम लोग ने भी ऐसे सोचा होता तो क्या होता, लेकिन हाँ मिलते हैं। और उसमें हमें प्रोग्राम जो सेल्फ ग्रूमिंग का है, उसमें मैम आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या कैसा उनको बोले हम ताकि वो समझे इसकी मांग को, क्योंकि कई बार जैसे कोरोना हुआ था उस समय हस्बैंड्स की नौकरी गई, लोगों की दिवाली, मेरी खुद की भी शॉप बंद हुई, मेरी नौकरी मैं खुद छोड़ के आई किसी वजह से सोचो गवर्नमेंट की, तो मतलब कहने का इतनी सब होने के बावजूद भी लोग घर में बैठे खाना ही बना रहे थे। आप देखिए सोशल मीडिया पे कुकिंग कर रहे थे कि हम नई नई चीज़, पर उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहें अगर? सेल्फ ग्रूमिंग सबसे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सेल्फ को समझो और उसमें अपने आप को समझ के अपनी कमियों को समझो। एक बार समझ में आ गई कमी ना, तो फिर वो निकल जाएगी। अगर एक बार हमें समझ में आ गया कि हमको गुस्सा, तो जितनी बार आपको गुस्सा आएगा आपको याद आएगा ये तो हमें कुछ गलत आता है। गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से में गलत ड्रास्टिक स्टेप लेना गलत है। गुस्सा आना नेचुरल है, आना ही चाहिए, गलत बातों पे आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम बहुत गुस्सा है कि लोग सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करते, आएगा गुस्सा ना। नया खुद पे भी लगता है। हाँ, कौन से वही, प्रोग्राम बिल्कुल। कैसे मैनेजमेंट करें? तो सेल्फ ग्रूमिंग में अगर अपने को अभी मुझे अपनी कमियां याद आ रही हैं
क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग पे मैं भी बहुत कॉन्शियस नहीं हूँ इस बारे में। मैं इमोशनल, मेंटल उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, अपने फिजिकल उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी आपने मेरे विचार जगा दिए, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अभी नाउ दिस इज हाई टाइम, 63 के एज में अभी मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगी तो मैं बेड पे आ जाऊंगी थोड़े दिन में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग होगा। आप क्लास में पढ़ा रहे हो, लेकिन आप उनको सोचने को एक एक को बोलने दो। जैसे आपने मुझे बोलने दिया, ऐसे आप सबको बोलने दो। आपको क्या लगता है कि आपका क्या नहीं अच्छा है? हर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ खराब। कोई कहेगा कि मैं मोटी हूँ, कोई कहेगा मैं सांप हूँ, कोई कहेगा मेरे बाल नहीं अच्छे हैं, कोई कहेगा कुछ। सेल्फ ग्रूमिंग इज नॉट ओनली अपीयरेंस, it is also the emotional quotient, and it is also the IQ, it is also the thinking, it is also the अभी कोई ये भी सेल्फ ग्रूमिंग ही हुई ना कि वो लड़की बैठी बात कर रही मुझसे, मैं खड़ी हूँ, उसको समझ में नहीं आया। So this kind of behavioral grooming also is very important. So first concentrate on this behavioral grooming, on emotional grooming and all these things. They themselves will realize that what other kinds of grooming, मुझे जो समझ में आ रहा है आपका grooming का, कि आपका personality development और care, तो उन्हीं से पूछिए, एक सेशन लीजिए और उनको बोलिए किस तरह से वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, और फिर उसमें तब उनको सलाह दीजिए कि आप अपना ये चीज़ ऐसे करो। Yes, we used to do the one-to-one meeting, then their needs समझ के उनकी क्या problems है, क्या वो सोचते हैं, अब तक निकल गया। वन टू वन मीटिंग भी कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, क्लास में भी बोलिए, कोई बात नहीं। उसमें मतलब अपने को ऐसा नहीं है कि हमने वन टू वन में आपसे कुछ बोला और हमें पब्लिकली बोलने में सबसे पहले तो ये निकलना चाहिए कि हमारे में कुछ ऐसा खराब है जो हम पब्लिकली बोल नहीं सकते। कुछ ऐसा खराब होता ही नहीं है, कोई चीज़ इतनी खराब कि आप बोल ना सको। अगर आप बोल दोगे एक बार ना, तो आपका सुधर जाएगा, डेफिनेटली सुधर जाएगा। अभी कल से मैं योगा Any questions? नहीं, आज शाम अभी घर जाके tomorrow never comes in life. I'll ask a question जी। which is slightly different from skill development. आप कॉलेज की प्रो वाइस चांसलर हैं. There is data which says कि the suicide rate among college students is Very twice the national average. yes, yes. तो उसका I don't know, reasons obviously बहुत complicated होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई एक reason होता है. बहुत complicated. हाँ, and मतलब इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे जी कि जी I जी, want to जरूर, work बहुत with. सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ. और इसमें सर आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया, जो मैंने कहा नहीं चाहिए हमें ऐसा। हमको समझ के लेना चाहिए बच्चों को, बजाय उन पे कुछ थोपने के। कि हमारे स्टूडेंट ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था, कोई कह रहा था कि उसको रैगिंग हुई या जो भी, वो शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड शी कुड नॉट कोप अप with other students कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या इस तरह से सुसाइड कर लिया। एक तो सबसे पहले हर बच्चे को, जो भी आपके आसपास हो, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो या घर में हो, उनको ये कहिए कि लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हल हो सकती है इफ यू आर अलाइव। मौत किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया, सुसाइड करने के इरादे से डूबा। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या हुआ, क्यों सुसाइड कर रहे हो? वो बोला कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है। तो स्वामी जी ने कहा चलो कर्ज तुम्हारा उतार देते हैं। वो किसी के पास लेके गए उसको, लड़के को, और कुछ कान में बात की
और उसके बाद हाँ हमें सीरीज लाया 2 लाख, वो आदमी जो जिसके पास से लेके गए तो बोला 2 लाख, तो बोले ठीक है। फिर कुछ काम में कहा, फिर वो आदमी बोला महंत जी जिसके पास गए थे बोला 4 लाख, ठीक है। तो महंत जी ने उस लड़के से जो डूब रहा था पूछा कि आपका इतने में कर्जा उतर जाएगा और भी चाहिए? तो बोला नहीं उतर जाएगा, पर मुझे क्या करना होगा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे समझा नहीं। तो बोला कि इन्होंने कहा कि तुम्हारी 1 आंख दे दोगे तो 2 लाख, 2 आंख दे दोगे तो 4 लाख, और अगर पूरा शरीर दे दोगे तो 55 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा कर्ज तो उतर जाएगा, शरीर तो वैसे भी तुम्हारे लिए बेकार था, वैसे था, तुम तो डूबने जा रहे थे। Then he realized कि क्या कीमत है, अगर वो मेहनत करे, वो सारे अपने ऑर्गन्स को काम में लगाए, तो वो कितना कर्ज इतनी बड़ी क्या चीज़ है कि कर नहीं सकते। एक हमारे यहाँ IAS ऑफिसर, हस्बैंड वाइफ दोनों IAS, सीनियर मोस्ट लेवल की, उनकी बेटी 28 साल की 10वें माले से इतनी स्वीट, इतनी अच्छी लड़की। क्या कहेंगे कि पेरेंट्स नहीं समझदार थे, कभी ये लगता है कि पेरेंट्स ने प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं किया, ये वो। अब वो दोनों जो एजुकेशन में एक सीनियर ऑफिसर हैं, एक टूरिज्म में सीनियर ऑफिसर हैं, उनको अपने बच्चे संभालना नहीं आता, ये तो नहीं कहा जा सकता। पर क्या चलता है, शेयर नहीं करते आजकल। सबसे ज्यादा सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे शेयर नहीं करते। They want their own space. ओन स्पेस, वो तो सबसे छोटे बच्चे भी होते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा बुलवाओ घर, हर एक को ये करना। आप माइक के लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, माइक के थ्रू ही जाएगा। So another problem like in IIT is कि वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग सेंटर्स खोल दिए हैं, बहुत सारे काउंसलर्स बैठते हैं फुल टाइम, लेकिन अब जिनको एक्चुअल जरूरत है वो वहाँ जाते नहीं हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ लोग भेजना भी बोलते हैं कि मुश्किल है। क्यों जा रहा है वहाँ पे, या उनको क्या प्रेशर आता है क्या नहीं है। एंड उल्टा होता है कि जिनको जरूरत नहीं होती है वो चलते हैं, चलो यार छुट्टी चाहिए मुझे, जाके तो भीड़ जाके लगाए। वहाँ पे बोलते हैं कि सर मुझे डिप्रेशन है, छुट्टी दे दीजिए। तो वो सिंस और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ झूठ बोल देंगे तो वो लोग छुट्टी भी दे देंगे। So how to tackle this problem? This is a very big problem and लोग गलत फायदा उठा। हाँ, और जिनको एक्चुअल जरूरत है वो शर्म के मारे नहीं जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही विशियस सर्कल है जिसको ब्रेक कैसे किया जाए, ट्राइंग टू। इसको ब्रेक करने का यही तरीका है, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। अरे बच्चे बोल देते हैं पेरेंट्स को, व्हाई डिडंट यू नॉक बिफोर एंटरिंग माय रूम। अरे सर हम लोग तो कैसे पढ़े ना पेरेंट्स का रूम लॉक रहता था, ना बच्चों का रूम लॉक रहता था, या कई बार तो सब इकट्ठे बैठ के, मतलब घर में है तो इकट्ठे बैठना जरूरी है कुछ समय के लिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। मतलब है ऐसा, अब बच्चे लॉक है अपने रूम में, पेरेंट्स अपने रूम में, एंड बच्चे भी बिना लॉक किए नहीं। अरे घर है, होटल नहीं है। घर और होटल में फर्क करना समझाइए। घर में बातें करें, वो घर में घुसते ही उन्हें बैग इधर फेंक के बड़बड़ करना आना चाहिए। आज ये हुआ, आज वो हुआ, मेरे ऊपर ये तकलीफ हो। ऐसा सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं, ऐसा पुरुषों को भी घर में पहुंचते ही बैग फेंक के अरे सुनो आज ये हुआ, वो हुआ, ये वो होना चाहिए। वो घर में थोड़ा धूम धड़ाका होना चाहिए जब बाहर से कोई एंटर करे, वो बहुत जरूरी है। ओपन अप होना बहुत जरूरी है, घर लगना चाहिए। मैम मुझे लगता है कि जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट होता है स्पोर्ट्स, वैसे ही योगा भी एक कंपल्सरी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे मैम सॉरी जैसे मैम अपर्णा मैम सिखाती हैं स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद योग एंड स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक सो इन द सेम वे yoga should be introduced in all the schools so that each and every child should have access to yoga। अपने ऊपर थोड़ा संतुलन होना, क्योंकि बहुत शोर है आसपास, इतनी सारी चीज़ें, सर कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है,
पर हम जानते हैं हमारी जनरेशन कैसे अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ें करा रही है। आज मेरी बेटी 9 साल की है मैम, वो चेस भी सीख रही है, वो गाना भी सीख रही है, वो कीबोर्ड भी सीख रही है, बटन नहीं वो लगा डिबेट भी सीख रही है, वो सब सीख रही है। इकलौती बेटी मुझे तो क्या 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 कर ले। तो इट्स नॉट दैट देयर इज एनी डर्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। सो यस मैम। देखिए, मुझे ये प्रॉब्लम से मैं बहुत पास से वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं काउंसलिंग के लिए, और लगातार काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत क्लोजली वॉच कर रही हूँ। और बच्चे तो मुझे हमेशा कच्ची मिट्टी लगते हैं कि यू कैन टर्न इट इनटू व्हाटएवर वे, बट प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही है? सॉरी टू से, यस मैम, यू नो वेयर आई एम कमिंग। सो प्रॉब्लम मुझे यही दिखाई दे रही है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा पता नहीं क्या बन जाए, और उस हमारे एक्सपेक्टेशन के से वो आ नहीं पाता उसके इक्वल। यहीं से उसका सेल्फ जो रेस्पेक्ट है वो कम होने लगता है, वो छिपने लगता है, वो हाइड करने लगता है, आपसे भागने लगता है, और फिर वो सबसे भागने लगता है। फिर हम लेटर ऑन हम कहते हैं कि बच्चा हमारे पास आके हमसे शेयर नहीं कर रहा है, बातें छुपा रहा है, वो कमरा बंद कर रहा है। कैसे कैसे ये दीवार खड़ी हो गई? कहाँ ये खड़ी हो गई? तो सबसे पहले बच्चे को लेट हिम बी फ्री। देखिए, क्या कर लेगा, आप क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँच जाएगा, वो BMB बन जाएगा, वो कुछ भी कर लेगा, स्टिल इट इज नॉट हैप्पी। क्या मिला मुझे बताइए? यदि आपने करोड़ों अरबों कमा भी लिए, वो किसी बहुत बड़े अधिकारी बन गया, कुछ हो गया, नहीं, दैट्स नॉट लाइफ। हमारा लाइफ का ये गोल ही, दिस इज व्हाई आई थिंक कि स्पिरिचुअलिटी इज द सीड जो आपको बताती है कि वर्क फॉर द हैप्पीनेस, फॉर द आनंद, दैट्स बीइंग प्रेजेंट, कि आपको जो आज के दिन आप जो हो उसको एंजॉय करिए, एंजॉय टू द फुलेस्ट, द वेरी बीइंग। इस वक्त आप जो हो दैट इज इनफ। बच्चे को बताइए कि यू आर इनफ फॉर मी, लाइक अ फ्लावर, लेट हिम ब्लूम। बहुत सारी चीज़ें सिखाने की जगह यदि हम उसको वो एक खिल के हंसने का मौका दे दें, जो काफ़ी है उसके लिए। आप देखिए, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। प्रॉब्लम स्टार्ट टैकल नहीं किया जा सकता इस प्रॉब्लम को, क्योंकि कॉलेज के पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपके पास घर में एक बच्चा, यदि आप वहाँ टैकल नहीं कर पा रहे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कॉलेज टू टैकल दैट प्रॉब्लम? वहाँ तो हमने प्रॉब्लम क्रिएट करके भेज दी। मुझको लगता है मैम, जितना एक छोटा बच्चा, क्लास 4 का बच्चा अपनी टीचर की सुनता है, अपनी माँ की नहीं सुनेगा, अपनी बात की क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुन रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है वो जितना ज़्यादा टीचर को सीरियसली लेता है, वो हम आपकी सोच है। बच्चा सबसे ज़्यादा माँ को सीरियसली लेता है। आप अपनी माँ को कितना सीरियसली लेते हैं? याद है, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं। जिनकी माँ नहीं है उनको पूछिए। मैडम, डिफरेंस क्या है कि वो आपसे कह देता है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, टीचर को बोल नहीं सकता। ये अपने दिल की बता दी। एक बात और आप कहिए, फिर हम चलते हैं। हमारा एक बात इसमें और थी कि जो सोसाइटी की बात थी कि हम अपने बच्चों को जब छोटे होते तो बहुत गले लगाते हैं, प्यार करते हैं उन्हें, तो जैसे जैसे वो 11-12 साल की एज में आते बड़े होते हैं ना, हमें खुद वही दीवार खड़ी कर देते हैं। बच्चों को हम हक नहीं करते, उन्हें हम गले नहीं लगाते, उनको हम प्यार नहीं करते कि अब तुम बड़े हो गए हो। वो दूरी उनके अंदर जो आती है वो कभी है, उनकी जो खुशियाँ हैं, जो उनकी मुस्कुराहट है, वो छिड़ जाती है, वो कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। जब वहाँ पूरी नहीं होती है और वो मंजिल नहीं मिलती है, तो कहीं ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं। सही बात है, वो भी। तो बच्चों को प्यार हमें हर उम्र में गले लगाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बच्चों को समझिए, आप उनको समझना शुरू करिए। देखिए, अभी एक सेशन हुआ, अनीश जी यहाँ है, अनीश तो उनके कोचिंग के बच्चों के साथ में 1.5 घंटे की उस वर्कशॉप में वो बच्चे और हम इतने पास आ गए, इतने अधिक पास आ गए, और उन्होंने इतना सब कुछ लर्न कर लिया उस 1.5 घंटे में। उन्होंने ऐसे ऐसे रिव्यूज भेजे, इतना
क्योंकि 1.5 घंटे में मैं उनके कोर को टच कर पाई। तो आप एज अ मदर उसके साथ रहते हैं, व्हाई कांट यू जस्ट बी, आप उनके साथ कनेक्शन करिए, उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करिए। और पैसा दे के मत सिखाइए, पैसा दे के चीजें सिखा रहे हैं आप, स्विमिंग भी कर लिया, गिटार भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बटन लगाना अभी भी नहीं सीख पाए। जब जरूरत पड़ी ना घर में डेली रूटीन में कुछ ऐसे मैंने रोटी बनाना सिखा दी अपनी 9 साल की बेटी को। ऐसे रूटीन में जब जरूरत लगे तो उनको उनके काम खुद करने सिखाओ, उनको खुद पॉलिश करने दीजिए, उनको खुद बैग लगाने दीजिए, उनको खुद कवर चढ़ाने दीजिए कॉपी पे, पेपर पे, बुक्स पे, ये सब चीजें करते हैं मैम, सब करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, एजुकेशन सिस्टम में बेसिक टेक चाहिए आपको, जो हम मतलब या जिसको हम एकेडमिक लर्निंग बोलते हैं कि बुक से रट्टा मारो 100% हमको चाहिए, 100% हमको चाहिए। ये बहुत से घरों में है। अगर हम कहें कि हम बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा जब तक कि मूलभूत अगर हमको एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन के तरीके को बता देगा। आज हम गुरुकुल पद्धति को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आज आप बाहर जाइए तो वहाँ पे आज लोग प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, गुरुकुल पद्धति भी वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज वहाँ से इतने ब्रिलियंट माइंड क्यों निकलते हैं वहाँ पे? क्योंकि उनको दिखता है कि आज हम यहाँ पे हमको जो मिल रहा है, बढ़ रहे हैं, आगे चल के इसका मेरे काम का कोई ना कोई वजूद है। लेकिन यहाँ तो एक घर में बनाया जाता है कि नहीं हमें तो 100% चाहिए, उसके 100% आ रहे, तेरे 99 आए तो देख घर में नहीं। बच्चा करेगा नहीं क्या करेगा? और बच्चा परेशान होने लगेगा, आपसे बात नहीं करेगा। और सर मुझे नहीं पता यूपी का, मैंने तो सुना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है, पर महाराष्ट्र में जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है एटलीस्ट हायर एजुकेशन में, उसमें योगा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। 5 वर्टिकल्स हैं, 5 में से कोई एक लेना बच्चे को कंपलसरी है। स्पोर्ट्स है, योगा है, कल्चरल है, हेल्थ एंड वेलनेस है, और एक कुछ और है। ऐसे 5 में से कोई एक कंपलसरी है। तो 3 साल में कभी ना कभी उनका आ ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी रोट लर्निंग एकदम बंद कर दिया है, बहुत सारे वो में हैं। तो अभी जो टीचिंग प्रोफेशन में है वो उनको मालूम होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। थोड़ा तो उसकी वजह से शायद बदल आएगा। ये तो नहीं अफर्ट करते कोई जना नहीं पड़े, जिनको जहाँ पर है वो लोग तो करा रहे, जिनको आगे वो उसको समझ के ना वो खाना पूरी नहीं कर, खाना पूरी तो खाना पूरी चल रही है। खाना पूरी चल रही है। एग्जाम तो बहुत टाइम से हो रहा है, जो एक्सरसाइज आते हैं ना देना तो जान का पेपर कर देना 30 नंबर पे ही 100 नंबर में पास होना जरूरी है। Thank you so much, ma'am. I think हमने काफी fruitful discussion रहा. I think everyone has learned something here. And now we move on to our inauguration. Instead of a formal stage inauguration, we will be proceeding to the classrooms where the diya will be lit, symbolizing the true beginning of learning at its very base. I request everyone to please proceed towards the classroom.